हेलो एवरीवन, वेलकम टू LRDIPrep। ये है हमारा नया चैनल जिसमें हम अपलोड करेंगे वीडियोस आपके LRDI सेक्शन के लिए फॉर ऑल MBA एंट्रेंस एग्जाम। एंड दिस चैनल विल स्पेसिफिकली बी for LRDI section. It will be run by me. I will be uploading the videos for your reasoning ability, your logical reasoning and data interpretation for all MBA entrance exam. Every day I will be uploading the videos for your entrance exams preparation, चाहे वो कैट का एग्जाम हो या फिर स्नैप का एग्जाम हो या एनमेट का एग्जाम हो, पूरा सिलेबस आपका इस चैनल पे कवर किया जाएगा. We will be uploading videos covering every topic which is a part of your syllabus. Okay, now starting with the first thing, this being the first video, we will be discussing a timetable for the next 120 days that you need to follow for your CAT exam preparation. I will be talking about quantitative aptitude, I'll be talking about DI and LR, and I'll also be talking about the verbal ability RC section because it's the first video. So you need to know what are the things that you need to follow in the next 120 days. क्या syllabus है, कैसे हम DI LR का preparation करेंगे इस channel के ऊपर, कौन कौन सी वीडियोस अपलोड होंगी, वो सब हम बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. गाइस, लेट्स स्टार्ट विद the first week. I have divided the complete 120 days. Now that we are left with 120 days for your CAT exam preparation, so I have divided into 17 weeks, 17 into 7, 119 days. Week wise आपका क्या syllabus होना चाहिए, क्या क्या आपके targets होने चाहिए, so that CAT के exam के दिन आपका पूरा syllabus cover हो and you feel confident for your CAT exam preparation. Starting with the first week, guys. सबसे पहले, let's say you're starting your preparation right now. Some of you might have started your preparation 3 months back or 4 months back. That means you're already at week 4 or week 5, right? But what a new candidate should start with, right? Week first में उसको क्या करना चाहिए? This is what we are going to talk about. Guys, first week के अंदर, the first thing that you need to do, go through the complete syllabus, right? You might have heard from your educators or your teachers, right? जिन्होंने आपको रैंडमली थोड़ा सा बहुत कैट का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया हो, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से अपने आप से एक बार सिलेबस जरूर देखें कैट का, एंड ऑल्सो गो थ्रू द ऑल प्रीवियस ईयर कैट पेपर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू ऑल प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स सो दैट यू गेट टू नो कि एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है. इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बच्चों को एक बहुत बड़ा डाउट ये रहता है कि हमने तो मैथ पढ़ा नहीं है 10th स्टैंडर्ड के बाद, ना तो +2 में पढ़ा ना ग्रेजुएशन में पढ़ा, तो हमसे कैट कैसे क्लियर होगा, जिसमें कैट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक बहुत बड़ा सेक्शन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन में भी कहीं ना कहीं क्वांट का यूज होता है. गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट सिलेबस, हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस of the previous year CAT paper and have a look at the topics. You will find that the topics which will be coming in the CAT exam, which are the part of syllabus of quantitative aptitude section, are basically from your 10th standard syllabus. All the topics that you have studied in maths till 10th standard are the part of the syllabus of CAT. There is not a single topic of 10+2 syllabus or even from mathematics books of graduation. There is nothing like that. It's basically a very very a small topics, aptitude basic topic of quantitative aptitude which you are supposed to study for your CAT exam preparation. So syllabus पढ़ने से आपका confidence थोड़ा सा अप होगा और आपके मन से ये डर निकल जाएगा कि आपने अगर क्वांट नहीं पढ़ा तो आप CAT क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. Okay, so quickly go through the syllabus, have a look at the previous year CAT papers, and then you get to know the complete idea. And you will get to know that there are 3 sections in CAT exam. Verbal ability is the first section that you will be coming in your paper, which will have 60 minutes. इसमें आपको RCs, critical reasoning, parajumbles के questions मिलेंगे. काफी टाइम पहले grammar based questions भी आते थे, but अभी last 8-10 years से there is not even a single question of grammar. RCs, parajumbles, critical reasoning के mainly questions आपको verbal ability में मिलेंगे. कैसे इसके बारे में कैसे prepare करना है, I'll give you the tips for this. Then the second section that you will be coming across for your CAT exam preparation is data interpretation and logical reasoning. Now in DILR, you will be coming across a situation based set, right? It can be various topics. What are those topics? What are those situations? We will talk about it in detail, but DILR is the second section
where you will be coming across 32 questions, and those 32 questions will be divided into 8 set, and you're supposed to solve around 5 set to get 99 plus percentile in 60 minutes. The timing of this section is separate, timing of verbal ability is separate. 60 minutes for verbal ability, 60 minutes for DILR, and then the third section is quantitative aptitude, 60 minutes for quantitative aptitude. So this will be the third topic that you will be coming across, जिससे नॉर्मली बच्चों को काफी डर लगता है. क्या क्या सिलेबस है वो आप यहाँ से स्टडी कर लोगे. आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम अभी बात करेंगे. राइट, व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स, पहले वीक में कौन से टॉपिक करने चाहिए, सेकंड वीक में कौन से टॉपिक करने चाहिए, क्या रीजन है उन्हीं टॉपिक्स को फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में करने का, हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. सो द फर्स्ट वीक क्विकली गो थ्रू सिलेबस, अंडरस्टैंड इट, और अपने मन से ये डर निकालो कि बहुत हायर स्टैंडर्ड का मैथ्स आपको नहीं पढ़ना है. आप बेसिक लेवल 10 स्टैंडर्ड तक के ही टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं कैट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक आपको बेसिक नंबर सिस्टम और एवरेजेस जो है वो फर्स्ट वीक में फिनिश करना चाहिए. रीजन उसका ये है, क्यों बेसिक नंबर सिस्टम, पूरा नंबर सिस्टम क्यों नहीं, बिकॉज लास्ट 8 to 10 ईयर्स में अरिथमेटिक जो है, अरिथमेटिक में आपके टॉपिक्स आते हैं एवरेजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. Last 8 years say from these chapters you will be there are around 16 to 17 question in CAT exam. So in 8 topics में से 16 to 17 question, that means almost 50% of the paper is coming from these chapters. और ये चैप्टर्स आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ रखे हैं, समझने में बहुत इजी हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, आपका कॉन्फिडेंस अप होगा और आपका 50% पेपर इन्हीं 8 चैप्टर से कवर हो जाएगा. अगर हम बात करें अलजेब्रा के चैप्टर की और ज्योमेट्री के चैप्टर की या कंप्लीट नंबर सिस्टम की, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत लेंदी हैं, जिनका सिलेबस इक्विवेलेंट है पूरे अरिथमेटिक के, और लेकिन एक ही चैप्टर कवर करते हैं. सो आपका स्टार्टिंग जो होना चाहिए वो अरिथमेटिक से होना चाहिए. बट अरिथमेटिक से पहले भी आपको नंबर सिस्टम का बेसिक इसलिए पढ़ना है बिकॉज यू विल बी कमिंग अक्रॉस सम क्वेश्चंस इन अरिथमेटिक आल्सो व्हिच विल रिक्वायर द नॉलेज ऑफ बेसिक नंबर सिस्टम. बेसिक नंबर सिस्टम में आई विल से दैट यू शुड स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन, राइट. स्पेसिफिकली इन नंबर सिस्टम यू शुड बी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स. क्लासिफिकेशन का जो एक बेसिक चैप्टर है जिसमें आप सारी डेफिनेशन सीखोगे, व्हाट आर द रियल नंबर्स, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन. एंड आल्सो यू नीड टू स्टडी अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एलसीएम, एचसीएफ, rational number, irrational number, everything will be covered in the classification part. So these are the 2 basic topics that I want you to study first on the first day from the basic number system. और बेसिक लेवल पे ही आपको ये पढ़ना है so that अगर इसका यूसेज बाकी चैप्टर्स में कहीं आता है so you feel comfortable with those statements and those terms which will be coming in the arithmetic questions. Once you are done with that part, in the first week you need to complete the first chapter which is averages, जो I guess आपने quantitative aptitude में आपके 7th 8th 9th में definitely पढ़ा होगा ये टॉपिक और आपको समझने में बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा. If you spend 1 week you will be able to do this chapter very easily. Okay, टारगेट क्या होना चाहिए, आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस की करनी है. It's very important. See, you might be able to find 1000 plus question of averages in the market if you look at the different books of very famous institute, and you can easily get all the PDFs of all of these institutions, and you might get thousands of questions from one particular chapter, but you need not to solve everything that is available in the market. What you need to do is just solve 100 questions covering various types of average questions. इससे क्या होगा, आपको एक एवरेज के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लेते हो तो आप कैट का एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एवरेज के, वो बहुत ज्यादा यूनिक क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत बेसिक टॉपिक्स, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर होते हैं. तो आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज पे जाके एवरेज नहीं करने की जरूरत है. कैट का सिलेबस लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस कैट के एग्जाम में आते हैं, जिसमें बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक से क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस होते हैं. इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू हैव अ लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर, टू हैव अ फील व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग. और मार्केट में एवरेज के जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. किसी भी एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप फॉलो कर सकते हो.
जो कि वेल रिसर्च्ड मटेरियल हो, स्पेसिफिकली जिसके क्वेश्चंस कैट ओरिएंटेड हो, राइट? आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली फाइंड इट. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन Unacademy Plus, जिस पे you can you follow our PDF files which we have made, after a thorough research, and we have covered all the questions specifically for your CAT exam. Anything that you feel that you are comfortable with, you can follow that material. So 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज इससे आपका रेंज ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाएगा. और एवरेजेस के हर साल कैट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 2. 2 क्वेश्चंस तो आपको एवरेज के टॉपिक से डेफिनेटली मिलेंगे. सो 1 चैप्टर विल गिव यू 2 क्वेश्चंस इन द कैट एग्जाम. Coming to the DILR, which this channel is made for. DILR, I'm talking about the data interpretation first here. Data interpretation is that one particular section which have a set of data represented to you in terms of table or line chart or bar chart or pie chart or spider web. There are various formation of charts to represent the data, and then there are some standard questions asked on those topics. Those questions are generally from the chapters of percentages, right? या तो percentage का concept based होगा कोई question, या फिर ratio comparison होगा, या फिर growth concept होगा. It can be of average based, right? So these are the only 4 to 5 topics on which the DI questions are based. So that's why this is also one of the reasons that you should start from averages, percentages and ratios in quantitative aptitude, because उसके साथ आपका DI का पार्ट भी कवर होता है. DI के अंदर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ ये अप्रोच सीखना है कि DI के सेट को अप्रोच कैसे करते हैं. जो कॉन्सेप्ट होगा वो तो ऑटोमेटिकली आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी कवर हो जाएगा. तो फर्स्ट वीक में DI LR के लिए यू शुड स्टार्ट विद डेटा इंटरप्रिटेशन, बिकॉज लास्ट कितने भी ईयर्स के आप पेपर्स चेक करो, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो कि ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड या ग्रोथ कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द वर्बल एबिलिटी सेक्शन. सो दिस इज द योर फर्स्ट वीक टारगेट फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DILR. नाउ the third is a verbal ability section. Now verbal ability is one section which checks a student's ability to read fast and what are you able to interpret out of the RCs, out of the paragraphs that have been given to you in a very short span of time. So in CAT you might be coming across around 7 to 8 RCs, every RC containing 3 to 4 questions. Out of 34 questions in verbal ability, you might be coming across around 24 questions from the RC things, right? RC is a reading comprehension, completely based on your ability to read. So to check where do you stand on verbal ability right now, you need to give a one sectional test of 8 RCs, right? This is the first thing that you need to do before you start your preparation in the verbal ability section. Check yourself, where do you stand right now in terms of reading skills. If out of 8 RCs set in 60 minutes, you are able to solve 5 RCs, 5 to 6 RCs, with 90% plus accuracy, that means you are already good with this one particular section. You do not need to spend much time of your complete timetable for the next 1 to 20 days on verbal ability. You can just keep on practicing RCs, maintain your reading habits, maintain your reading skills, and then you spend time on Quant and DILR. But if you're not able to solve much questions, if your accuracy is very bad, if you're not able to solve around 3 RCs with 60 to 70% of accuracy, then you need to spend at least 2 hours every day on improving your reading habits. Okay, because this one particular section is based on your ability to read fast. For that you need to improve your reading ability. आपको अपना रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेगा, और रीडिंग स्किल्स सिर्फ रीडिंग से ही इंप्रूव होगा. यू नीड टू ब्रिंग योरसेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग at least 5,000 word article or 6,000 words article every day, जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा रीडिंग्स के अंदर, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल एट द एंड ऑफ डे व्हेन इट कम्स टू VA सेक्शन. बिकॉज VA सेक्शन के जितने भी पार्ट है, राइट, यू टॉक अबाउट RCs, you talk about critical reasoning, you talk about parachambers. RC, critical reasoning, parachambers. All these 3 topics require your reading skills, right? Require your good reading skills. So reading is the only thing that will save you in verbal ability. So if you are not
in the habit of reading books and novels and newspaper, you need to develop that habit. So check yourself first, where do you stand in this part? Okay, now this is your complete 1 week syllabus. Coming to the week 2, guys, on quantitative aptitude, you need to do in the second week the complete chapter of percentages. This will help you in data interpretation also, and because it's a based of next 2 topic also. If you're good with the percentages, next 2 topics will automatically get covered, which are profit and loss and SICI. And by doing percentage, profit, loss and SICI, you are already ready for the 8 questions out of 34 questions of your CAT exam. You have a look at the previous year paper, you will find that average, percentage, profit, loss, SICI definitely give you at least 8 questions out of 34, right? Again, do a proper theory. You can attend the classes, or you can follow any material to cover this theory part, right? You can join our courses on Unacademy Plus to complete the theory comprehensively, and at least again do the practice questions for at least 100 questions need to practice, जिसमें आपके thoroughly सभी टाइप के questions cover हो जाए. सेकंड वीक के अंदर आपको DILR के अंदर बेसिक सेट्स ऑफ रेशियोज ट्राई करने चाहिए, जो रेशियोज के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे हो, जिससे आपके रेशियोज का बेसिक एक आइडिया लग जाए. एंड ऑल्सो सम वेरी वेरी बेसिक सेट टेबल और लाइन चार्ट्स विच आर बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ एवरेजेस एंड परसेंटेज ग्रोथ कंसेप्ट. ये दोनों पैरेलल चलेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज परसेंटेजेस अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ रहे हो तो डीआई में समझने में भी इजी रहेगा. और एंड आई हैव नेवर सीन ए कैट पेपर जिसमें आपका परसेंटेज के बेस पे सेट नहीं आया हो. You will definitely have, it's the safest bet that you can play in CAT exam. You're definitely going to have one set on the basic concept of percentage. It can be based on the ratio comparison. It can be based on the percentage increment, decrement. It can be based on revenue profit concept, or it can be based on a simple annual growth rate concept or compounded annual growth rate concept. I will be giving you the videos to understand this basic concept on this channel also. So you can follow those videos also, right? In verbal ability, guys, if your reading skills are not good, and if they are good also, you should start, reading an article of at least 5,000 words every day. If you're good at it, to maintain your reading skills, go with the reading. If you are not good at it, you have to read it. And also with this, you have to practice every day after attempting the standard classes or after understanding the standard approach of solving the RCs. You should be practicing a sectional test of 8 RCs set in 60 minutes. Now, it's not that you are supposed to solve 8 RCs in 60 minutes, but you need to practice it, because it's very important to select a set in the CAT exam while you are attempting this section, because nobody is going to solve 8 out of 8 RCs. There has to be a selection as per your comfort areas, as per the areas where you are comfortable. You need to find out the content which you are comfortable in reading. And let's say some of you might be interested in reading science articles. So if there is a set coming, if an RC coming from the science, you will be able to read it in a better way, and you might find those questions or might find the reading easy, and you might have a better accuracy. So find out the strength areas, the articles, the different section where you are comfortable at, and when you're attempting a sectional test of 8 RCs, it brings, it inculcates the habit of selecting the RCs out of 8. आपको सिलेक्शन का जो हैबिट है वो स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस हो जाएगा. कौन सा सेट आपको पहले करना है, कौन सा सेट आपको बाद में करना है. एवरीथिंग विल बी practiced from the day 1, and till the end of day you will definitely be in position to find out कि 8 RCs में से 8 RCs में से आपको कौन सा सेट पहले करना है, कौन सा लीव करना है, कौन सा आपका कंफर्ट जोन है, कौन सा आपके वीक एरियाज हैं. तो आपका उसका प्रैक्टिस हो जाएगा. तो आपको डेली बेसिस पे सेकंड वीक में 8 RCs डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है 60 मिनट से. इससे आपका आरसी का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी डन विद योर 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ 34. क्या फर्स्ट वीक में आरसीस को करके छोड़ देना है? नहीं, ये प्रोसेस आपको कैट के एग्जाम तक कंटिन्यू रखना है. अगर आप इसको कंटिन्यू रखोगे तो आपको आरसीस में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट? कमिंग टू द थर्ड वीक गाइस. थर्ड वीक
In quantitative aptitude, you should go with profit loss and SSA. Reason is profit loss SSA concepts are based on the chapter, on the concept of percentages. परसेंटेज अच्छे से हो गया, समझो प्रॉफिट लॉस एसआईसी में कुछ नया नहीं करना है, उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करके उसी की एप्लीकेशन पे ही दोनों के दोनों चैप्टर्स हैं. तो थर्ड वीक तक आपके 8 क्वेश्चंस का काम खत्म हो जाएगा. DILR में यू नीड टू practice at least 4 set and the theory of also these basics, table, chapter, line, bar graph and pie chart. I'll be uploading the videos of all of these on this channel. Okay, and if you are in any coaching institute, right, these are in the third week you need to do at least 4 set of tables, lines, bars and pie. इसमें आपको एक बेसिक DI का आइडिया लग जाएगा एंड योर 50 to 60% सिलेबस ऑफ DI विल बी ओवर बाय द थर्ड वीक. VARC रीडिंग के अलावा कुछ नहीं, आपको 5000 वर्ड का आर्टिकल डेली रीड करना है. एंड ऑल्सो इन द थर्ड वीक, once you are done with the RC part, you should also start covering the basics of parajumbles and critical reasoning. Parajumbles और critical reasoning का basic theory आपको समझना है थर्ड वीक के अंदर, because these are the topics which are coming in the CAT exam from the last 8 to 10 years. Okay, coming to the fourth week, the fourth week chapter should be a ratio, proportion, chain rule and partnership. These small topics are also a part of ratio and proportion, right? Spend complete 1 week on this, a very, very important chapter, definitely going to give you 2 to 3 questions in the CAT exam. Again, do the theory, practice question at least 100. Now, on the fourth week, when it comes to DILR, what you should do is 4 sets of each: multiple graph, caselet, set theory and miscellaneous graph. This will cover your complete syllabus. In the fourth week, you are done with your data interpretation thoroughly and nothing is left. Right, you need to solve the set based on multiple graphs, जिसमें दो से ज्यादा ग्राफ्स हो या एक से ज्यादा ग्राफ हो, पाई चार्ट और बार चार्ट का कंबाइन हो. ऐसे सेट आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएंगे. यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस सेट इन द प्रीवियस ईयर कैट पेपर ऑल्सो. केसलेट, जिसमें कोई चार्ट नहीं होता है, पूरा एक केस सिचुएशन बेस्ड कुछ केस आपको दिया है जिसको आपको स्टडी करके सॉल्व करना है. कॉन्सेप्ट आपका एवरेज रेशियोज परसेंटेज में से ही रहने वाला है. सेट थ्योरी अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एवरी 3 to 4 years के अंदर यू विल सी दैट every second or third year the set theory set is coming. 2019 there was a one small set of set theory. 2017 morning and evening slot we had a set theory set. 2018 में भी आया था. तो हर साल आपको set theory का set तो मिलेगा ही. So you cannot afford to miss it. You have to do it thoroughly. Okay. Miscellaneous graphs जो हैं, right, जो टेबल, लाइन, बार चार्ट में नहीं, जैसे आजकल डोनट पाई चार्ट के क्वेश्चंस आने लगे हैं, राइट. 2018 में there was a donut pie chart. 2019 में स्पाइडर वेब ग्राफ था, राइट. सो these are just a way of representing the data. क्वेश्चन तो अल्टीमेटली रेशियोज, एवरेज, परसेंटेज पे ही बेस्ड होने वाला है. सो जस्ट हैव अ लुक एट ऑल द मिसलेनियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आल्सो. आपको उसको रीड करना आना चाहिए. सो फोर्थ वीक में आपको ये खत्म करना है. वर्बल एबिलिटी, सेम थिंग विल कंटिन्यू. RC sectional test, parajumble, critical reasoning, 5 questions. Once you are done with the theory part, keep on practicing 5 questions of parajumble and critical reasoning every day. These 5 questions are not need to be practiced in full week. In fact, every day you need to do 5 questions of parajumbles, 5 questions of RCs and complete sectional test of RC every day. And this article reading has to continue even if you are good at in verbal ability or even if you are not good at verbal ability. आपको maintain तो करना ही पड़ेगा अपना reading skill. Okay, coming to the week 5 guys. Week 5 you need to take a break. Don't do any new topic because by the week 5, right, almost 1 month will be done, or you're done with the 1 month. So it's very very important that you revise revision of all the topics. Now when you do the revision of all the topics, you don't need to go to the new books. Study the same questions, because when you're doing the question for the second time, it help you in understanding the concept in a much better way. आपका पकड़ और मजबूत होगा कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को 5th वीक में दोबारा से करेंगे. एंड बिकॉज यू विल बी डूइंग इट फॉर द सेकंड टाइम, तो जिस काम को करने में आपको 4 वीक्स लगे, आप पूरे 1 वीक के अंदर उसका एक प्रॉपर रिवीजन लो, क्वेश्चन को दोबारा से करो, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप सेकेंड टाइम पे कर रहे हो. बहुत ईजिली हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से पकड़ आएगा. Also, once you are done with all the previous questions that you have done already in the first 4 weeks, go for the 20 questions from every topic with a new syllabus, just to check कि आपने जो सीखा, जो कंसेप्ट आपने सीखा, नए क्वेश्चंस पे आप उनको यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो.
Now, by the fifth week, you can also start with your logical reasoning part now. Logical reasoning में कुछ advanced level का theory नहीं है, basic. It can be, LR के set किसी भी situation के हो सकते हैं, right? You might find, after doing even 1000 set, you might be finding a set in the CAT exam which you have never seen before in your practice sets or in your practice book. The reason is, nowadays a CAT have started asking the questions which are completely based on the language understanding rather than on a one standard particular concept which have been coming from the last 7 to 8 years. आपको न्यू सिचुएशन बेस ही कुछ ना कुछ सेट मिलेगा, बट ये कंफर्म है कि सेट वुड बी वेरी इजी, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट. आप 17, 18, 19 के सेट को अगर आप ट्राई करोगे, यू विल गेट टू नो कि ये सेट नॉर्मल कोई भी पर्सन कर सकता है. इसको करने के लिए आपको स्पेसिफिक किसी थ्योरी का आना जरूरी नहीं है, कुछ टेक्निकल पार्ट आना जरूरी नहीं है, राइट? इजीली आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो. एलआर का बेसिक कंसेप्चुअल सेट आपको सॉल्व करना है. बेसिक कंसेप्चुअल में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे सेट सॉल्व करना है. स्टैंडर्ड जो टॉपिक है जिनमें काफी प्रीवियस ईयर्स के काफी क्वेश्चंस में आपको सेट मिलेंगे कैट के, उसमें वन ऑफ द टॉपिक इज अ डेटा अरेंजमेंट, अ नेटवर्क बेस्ड सेट एंड द क्वांटिटेटिव रीजनिंग. सॉल्व सम स्टैंडर्ड सेट. इनको करने के लिए कुछ थ्योरी का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ अप्रोच सीखना है, प्रैक्टिस करनी है. स्टैंडर्ड बुक में आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में ये टॉपिक्स डेफिनेटली मिल जाएंगे एंड मेरे इस चैनल के ऊपर भी आपको इस पे वीडियोस मिल जाएंगी. ओके, फिफ्थ वीक में आपको ग्रामर में ग्रामर स्टार्ट करना है अपना वर्बल एबिलिटी में. वैसे ग्रामर के क्वेश्चंस लास्ट 4 to 5 years या इनफैक्ट 7-8 years से वर्बल एबिलिटी में ग्रामर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट IIFT के अंदर, स्नैप के अंदर, बाकी सभी एग्जाम्स में ग्रामर के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और आपको इसका बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा. सो आपको फिफ्थ वीक में ग्रामर में क्वेश्चन करना है. और कैट में भी ऐसा हो सकता है कि कैट 2020 में कुछ 2 या 3 क्वेश्चन आपको ग्रामर बेस भी पूछे जा सकते हैं. सो स्टडी ऑल द ग्रामर रूल्स एंड एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस और इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस, राइट? स्टडी इन द फिफ्थ वीक and this article reading should continue. Going to the week number 6. Week 6, guys. In the 6th week, you need to complete your time and work and time, speed and distance. Both chapters. Very, very easy to do. इतना quantitative aptitude, arithmetic इतना करने के बाद आप बहुत easily time and work और time, speed, distance को कर सकते हो. प्रैक्टिस करने हैं आपको 100 क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क एंड टाइम, स्पेंड, डिस्टेंस किसी भी स्टैंडर्ड बुक से. आप इसका मटेरियल, इसका कंसेप्ट करो जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन सभी कवर हो जो कि कैट ओरिएंटेड है. सारे क्वेश्चन सभी बुक्स के, सभी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको. यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम. इनफैक्ट यू कैन यूज दैट टाइम इन डूइंग समथिंग एल्स, राइट, विच इज रिक्वायर बेटर. बिकॉज 100 क्वेश्चन में जो आपने सीखा वो 200 क्वेश्चन में आप कुछ नया नहीं सीख जाओगे, राइट? 100 क्वेश्चन कर लिए, दैट इज सफिशिएंट. बट हाँ, ये 100 क्वेश्चन अच्छी वैरायटी के होने चाहिए, सभी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने चाहिए. सो इसलिए स्टैंडर्ड जो मटेरियल है उन्हीं को आप फॉलो करो. 100 क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के कीजिए. DILR के अंदर एक सेक्शन आता है गेम्स एंड टूर्नामेंट का. पिछले काफी सालों से कैट में, प्रीवियस ईयर में भी 2006 देयर वाज वन गेम्स एंड टूर्नामेंट सेट. 2005 के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट आया था. 2006 में हॉकी टूर्नामेंट आया था. इनफैक्ट 2018-19 के अंदर 19 के अंदर देयर वाज a rifle and archery tournament based set. Now the games and tournament set doesn't mean कि आपको सभी गेम्स के रूल्स पता होने चाहिए. It's not like कि अगर हॉकी टूर्नामेंट आ रहा है तो आपको हॉकी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. It's not like that. Generally क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन बेस्ड ही होता है. You have to understand the instruction and the information given in the game in that set. रूल्स जो वहाँ पे आपको दिए हैं, चाहे वो आर्चरी टूर्नामेंट है या चेस टूर्नामेंट है या टेनिस टूर्नामेंट है या फिर हॉकी टूर्नामेंट और फुटबॉल टूर्नामेंट है, उन रूल्स को समझ के आपको डेटा पे अप्लाई करना है वो रूल्स को. और मिसिंग वैल्यूज को हो सकता है आपको फाइंड आउट करना पड़े या किसी डेटा को आपको इंटरप्रेट करना पड़ सकता है, रीड करना पड़ सकता है, उसमें कुछ इन्फ्रेंस आपको निकालने पड़ सकते हैं. इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं. सो इट्स नॉट दैट कि गेम्स एंड टूर्नामेंट करना है तो हॉकी के रूल्स पढ़ो, टेनिस के रूल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? नॉट इवन you not need to know even 1% rules of these tournaments. उसमें इंस्ट्रक्शंस आपको दी होंगी. So games and tournament are one of the type of set that you need to know, जिसका सिर्फ आपको अप्रोच पता होना चाहिए. So उसके ये एक अलग से चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आपको इजीली स्टैंडर्ड बुक में मिलेंगे. मैं भी इस चैनल के ऊपर गेम्स एंड टूर्नामेंट के सेट आपकी हेल्प करने के लिए काफी अपलोड करने वाला हूँ. DI logic set. There's some set which require a basic knowledge of data interpretation and the basic knowledge of reasoning also, जिसमें DI भी और reasoning दोनों combine आते हैं.
ऐसे सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं 6th वीक के अंदर। और मल्टीपल केसेस अरेंजमेंट सेट जिसमें यूनिक पॉसिबल केसेस नहीं होते, अरेंजमेंट के वो सेट जो एक यूनिक पॉसिबल केस आपको नहीं देते, इनफैक्ट कंडीशन टू कंडीशन वेरी करते हैं। और आजकल लास्ट 5 to 6 इयर्स में आपको ऐसे ही सेट देखने को मिलेंगे कैट एग्जाम के अंदर, जिसमें क्वेश्चन के अंदर आपको सिचुएशन दिया होगा, उस सिचुएशन के बेस पे आपको अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। सो वो मल्टीपल केसेस वाले अरेंजमेंट को कैसे डील करना है उसका अप्रोच आपको 6 वीक में सीखना है और इसके सेट भी प्रैक्टिस करने हैं। Okay, verbal ability, come after once you're done with the grammar, go with the same standard approach। 2 घंटे के अंदर आपको 5000 वर्ड वाला आर्टिकल रीड करना है, आरसी का प्रैक्टिस करना है, 5 क्वेश्चन सीआर और पैरा जंबल से करने हैं डेली बेसिस पे, नॉट ऑन द कंप्लीट वीक, नॉट इन द कंप्लीट वीक गाइस। ओके, मूविंग ऑन टू द 7th वीक। 7th वीक में नाउ in 6th week your arithmetic is done, right? That means out of 34 question you are in the game of 15 plus questions। 15 plus questions हो गया। ओके, कैट के एग्जाम इसका मतलब क्या है? 15 क्वेश्चंस हो गया, 95 परसेंटाइल अगर मुझे टारगेट करना है तो मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं, सब कुछ करना पड़ेगा। रीजन इज 15 क्वेश्चंस तो का सिलेबस भले आपने कर लिया हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि कैट के एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन जो आप 15 के 15 क्वेश्चंस करने वाले हो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आप एग्जाम में कर पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? देयर विल बी सम क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक दैट यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, या जो टाइम लिमिट में सही नहीं सॉल्व नहीं हो सकते, जिनको सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम का रिक्वायरमेंट है और आपके पास वो टाइम नहीं है, तो आपको 15 में से इजी क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो आपके फैमिलियर क्वेश्चन है, आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उससे बिलोंग करते हैं, वो क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं। सो आपको बाकी के चैप्टर्स भी कवर करने पड़ेंगे, बिकॉज वी डू नॉट नो कि 15 क्वेश्चंस अगर अरिथमेटिक से आ रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, कितने क्वेश्चंस इजी है, राइट? सो बाकी के चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। नंबर सिस्टम, इट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आपको पूरे 7 वीक में थोरली करना है। अलजेब्रा से पहले करना जरूरी है, बिकॉज अलजेब्रा के अंदर आपको काफी यूज करना पड़ेगा नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन तो आप पहले ही स्टडी कर चुके हो फर्स्ट वीक में, रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट, एलसीएम एचसीएफ, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टोरियल और कुछ भी टॉपिक्स हैं, राइट, जो आपको नंबर सिस्टम के अंदर डिटेल में स्टडी करने हैं 6th वीक में जाके। नंबर ऑफ फैक्टर्स पे 2019 में इवनिंग स्लॉट में एक क्वेश्चन आया था। सो यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस दिस टॉपिक्स, आपको लेकिन करना 7th वीक में है, बिकॉज पूरा वीक इसके ऊपर आपका लग जाएगा। काफी सारे टॉपिक्स हैं इसमें आपको कवर करने के लिए, बट फर्स्ट वीक पे लगाना इसलिए सही नहीं है, तब तक तो हमारे और काफी चैप्टर्स हो जाएं, राइट? सो इसलिए आपको फर्स्ट वीक में फर्स्ट 6-7 वीक्स में 6 वीक्स में अरिथमेटिक कंप्लीट करना है। Now, till the 7th week, you are completely done with your syllabus of LR and DI। आपका DI और LR 6 वीक तक खत्म हो जाएगा। 7th वीक में आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के DI LR के सारे सेट सॉल्व करना शुरू करो, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 और 1998, या जहां से भी आपके पास सेट अवेलेबल है टिल डेट, जितने भी DI LR के सेट आए वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसका एक रीजन ये है, 2017 में there was a one set of DI, you can cross check it, which came from CAT 2003 as it is only. The names were changed, a new situation was given, but the concept was exactly similar to that set. 2018 evening sort, there was a set of this a set theory which came as it is, which was repeated as it is from CAT 2005। CAT 2005 में एक सेट आया था वॉलंटियर बेस्ड सेट, जिसमें एक सेट थ्योरी का बेसिक एक वेन डायग्राम बना था, अच्छा सेट था, लेकिन वही सेट एज इट इज सेम वैल्यूज के साथ, देयर वाज नथिंग, देयर वाज नॉट अ मेजर चेंज इन दैट सेट, एज इट इज ऑल, काफी वैल्यूज भी सेम थी, इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर भी सेम थे, एज इट इज 2018 में फिर से आया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कैट के सेट काफी प्रीवियस ईयर के सेट से रिपीट हो रहे हैं, एज इट इज सेट पीछे प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए जा रहे हैं, एक नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि 5 से 6 सेट एज इट इज रिपीट हो गए। देयर आर चांसेस दैट यू माइट गेट 1 सेट फ्रॉम द प्रीवियस, और 1 सेट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अल्टीमेटली आपको LRDI के अंदर 5 सेट का टारगेट करना है, और उसमें से एक सेट अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाए तो फिर आपके लिए 5 सेट सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस ऑल प्रीवियस ईयर DI LR सेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको ये करना है 7th वीक में जाके, जब आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाए, आपको प्रीवियस ईयर के DI LR के सारे सेट सॉल्व करने हैं, और VA आपका एज इट इज सेम प्रैक्टिस पे चलता रहेगा। वीक 8 में आके आपको अलजेब्रा का पार्ट 1 शुरू करना है। अलजेब्रा पार्ट 1, अलजेब्रा ज्योमेट्री से पहले करना इसलिए जरूरी है बिकॉज अलजेब्रा का वेटेज कंपेयर टू ज्योमेट्री ज्यादा है,
इट्स इक्वल टू अरिथमेटिक, राइट. यू कैन एक्सपेक्ट 2017 के अंदर अलजेब्रा में से 11 क्वेश्चंस आए. अब 2018 के अंदर देयर वर अराउंड 9 क्वेश्चंस, राइट. 19 के अंदर भी 8-9 क्वेश्चंस आए थे. सो अलजेब्रा आपको 8-9 क्वेश्चंस देने वाला है. टॉपिक्स काफी सारे हैं, राइट. सभी टॉपिक्स को हम अगर देखें इसमें अलजेब्रा में तो एटलीस्ट 13 to 14 टॉपिक्स हैं. सो इट्स इक्वल टू योर कंप्लीट अरिथमेटिक. सम स्टूडेंट्स माइट फील अनकंफर्टेबल इन इट. बच्चों को लगता है कि अलजेब्रा एडवांस मैथ में आता है, बट इसमें 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है. इसमें जो टॉपिक्स आपको करने हैं, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको करना है, राइट. आइडेंटिटीज, you need to do the linear equation, you need to do the quadratic equation, you need to do the basic higher order equation. Higher order equation में आपको सिर्फ cubic equation करना है, higher order equation, right. A modulus part 1 में, yes, that these are the topic that you need to do in part 1 in the week 8. ये सब टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं. मॉडुलस हो सकता है आपने नहीं पढ़ा 10th स्टैंडर्ड तक, बट इजी है अंडरस्टैंड करना, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. सो 8th वीक में भी आप प्रीवियस ईयर DILR के सारे सेट कंप्लीट करो. प्रीवियस ईयर DILR के लिए वीक 7 और वीक 8 आपको फॉलो करना है. ये एज इट इज वर्बल एबिलिटी चलता रहेगा. वीक 9 अलजेब्रा पार्ट 2. अलजेब्रा पार्ट 2 में क्या क्या करना है आपको? चैप्टर्स लाइक इनइक्वालिटी, you need to cover the chapter of inequality in the 9th week, quantitative ability, and next topic should be your sequence, logarithm. Logarithm, you will give you 2 questions for sure. Every year you find 2 questions of logarithm. Surds and indices. Surds and indices also part of number system. You can cover it in number system also, or you can also cover it in algebra. Logarithm, surds and indices, inequality, and then you have sequence and series, right? Sequence and series, maxima, minima, maxima, minima. These are the standard topic that you need to do, right? हो सकता है एक आधा टॉपिक इसमें कुछ रह गया हो, आपको सिलेबस में वो मिल ही जाएगा. वो अलजेब्रा पार्ट 2 में आपको 9th वीक में कंप्लीट करना है. नाउ वंस यू आर डन विद योर प्रीवियस ईयर इन DILR, जब आपके प्रीवियस ईयर के कैट के सारे सेट सॉल्व हो जाए, नाउ इन द 9th वीक यू शुड बी प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 20 सेट इन द फुल वीक ऑफ एडवांस लेवल LRDI. एडवांस लेवल करना इसलिए जरूरी है कि मॉडरेट लेवल का सेट आपको एग्जाम में जाके इजी लगे. एडवांस LRDI आपको प्रीवियस ईयर में भी काफी मिलेंगे, लेकिन आपको अलग से 20 सेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है 9th वीक में जाके. LR के भी और DI के भी कंबाइन, राइट. 20 सेट वुड बी सफिशिएंट इन द 9th वीक. सेम थिंग विद द वर्बल एबिलिटी. नाउ वीक 10, नाउ बिकॉज योर 90% सिलेबस इज डन, यू आर ओनली लेफ्ट विद ज्योमेट्री एंड मॉडल मैथ व्हेन इट कम्स टू क्वांट. सो 10th वीक के अंदर बच्चों आपको you should start with your mock papers. Mock paper are very very important. आपको इसको एनालिसिस भी करना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीक एरियाज फाइंड आउट करने हैं, स्ट्रेंथ एरियाज को मेंटेन करना है, वीक एरियाज पे काम करना है पूरा वीक, और फिर आपको नेक्स्ट मॉक पेपर में शिफ्ट करना है. सो 10th वीक से आपको अपने मॉक पेपर शुरू करने पड़ेंगे. और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर बिकॉज आपका 9th वीक में अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, यू शुड स्टार्ट विद द ज्योमेट्री पार्ट. Triangle will be the first topic that you will be doing in geometry and its properties. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 10th वीक तक आप अरिथमेटिक बोलना भी शुरू कर दोगे, आपका दिमाग से कंसेप्ट जाने लगेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग बैक दोज कंसेप्ट्स, राइट, टू रिटेन दोज कंसेप्ट दैट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट वीक. आप इस वीक में एवरेज के भी 10 क्वेश्चन और परसेंटेज के भी नए 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. रिवीजन वाला पार्ट तो हम पहले भी कर चुके थे सेम क्वेश्चन का, सो देयर इज नो नीड टू डू दोज सेम क्वेश्चन फॉर द थर्ड टाइम. अगर आपको देखना है, आपको लग रहा है कि आप वो सब क्वेश्चंस भी भूल चुके हो, तो आप देख सकते हो, बट आपको 10-10 क्वेश्चन अगर एवरेज के और परसेंटेज के कर रहे हो, 10 में से 9 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, दैट मींस यू हैव मेंटेन्ड योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरेज, दैट मींस यू हैव रिटेन दोस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरेज एंड परसेंटेजेस. तो आपको बाकी वही क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. डू दोस 10 क्वेश्चन, लेट्स चेक कि आप 10 में से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो. अगर कम किए 4 से 5 हुए तो फिर आपको दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा 10th वीक में आके इन 2 टॉपिक्स का प्रीवियस क्वेश्चंस का. DILR के अंदर अब आपको थ्योरी वाइज कुछ नहीं करना है. डेली आपको 4 सेक्शनल टेस्ट विद 8 सेट्स ईच, दैट मींस टोटल 32 सेट आपको पूरे वीक में प्रैक्टिस करने हैं. 4 सेक्शनल टेस्ट देने हैं और सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट देने हैं. ऐसे नहीं 2-2 सेट आप डेली उठाओ और उसको सॉल्व करो, उससे नहीं चलेगा काम. रीजन उसका ये है, एग्जाम के अंदर आपको सेट सिलेक्ट करने पड़ेंगे. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट हु हैव अटेम्प्टेड 8 out of 8 सेट till date in CAT exam, leaving 1 or 2 faculty members who appear for CAT every day, every year.
स्टूडेंट्स की हम बात करें तो 8 में से 8 कोई नहीं करेगा। 99% लाने के लिए आपको 8 में से 8 सेट नहीं करना है, आपको 5 में से 8 ही 5 ही करना है आउट ऑफ 8। यू नीड टू डू 5 सेट आउट ऑफ 8। 4 से भी काम चल जाएगा। 2017 में DI डिफिकल्ट आया था तो 4 सेट में भी 99.9 प्लस परसेंटाइल आया था। सो 5 इज अ सेट। अगर मॉडरेट, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल का अगर पेपर आता है, इसमें कॉम्बिनेशन है, इजी भी सेट है, मॉडरेट भी है, डिफिकल्ट भी है, तो 5 सेट इज अ मैक्सिमम कट ऑफ दैट यू विल हैव इन DILR सेक्शन। सो 8 पूरे 8 सेट का आप पूरा सेक्शनल टेस्ट लो, उसमें से सेट सेलेक्ट करो। 60 मिनट में आप देखो कितना सेट आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो। एंड यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका प्रैक्टिस करें कि सेट पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है। इसका प्रैक्टिस आप सीधा अगर कैट में जाके करोगे तो फिर आपके वहां पे गलत सेलेक्ट करने के चांसेस काफी रहेंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये सेक्शनल टेस्ट रेगुलर फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट 60 मिनट्स के 4 बारी आपको हर वीक में देना है, जिसमें आपके 32 सेट तो हो ही जाएंगे, राइट। एक बार सेक्शन टेस्ट दे दी, उसके बाद फिर आप बाकी के सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आप एक बार 60 मिनट के लिए ही वो सेक्शन टेस्ट देने हैं। I'll be giving you many set on this channel, so subscribe this channel so that you get updates of channels, right? different का जो थ्योरी पार्ट है, डिफरेंट टाइप के सेट्स हैं, वो आपको इस चैनल पे भी मिल जाएंगे। सेम थिंग विद वर्बल एबिलिटी, इसको नहीं छोड़ना है, बिकॉज इसको छोड़ा तो फिर आपका एक सेक्शन वीक पड़ जाएगा, सो ओवरऑल कट ऑफ आपका क्लियर करने में प्रॉब्लम होगा। वीक 11 मॉक टू का एनालिसिस। हाँ, मॉक 1 अगर आप दे रहे हो, मॉक 1 को ऐसे छोड़ना नहीं है, दे दिया और छोड़ दिया। इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज इट, मेक ए चार्ट, नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स विच अपीयर्स इन मॉक पेपर 1 एंड फाइंड आउट कितने क्वेश्चंस थे, आपने कितने किए, कितने गलत किए, वन पर्टिकुलर चैप्टर में से। फाइंड आउट कि किस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। जो चैप्टर आपने कर लिया उसके बाद भी अगर मॉक पेपर में उसके 5 में से आपके 3 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर कॉन्सेप्ट, या फिर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे। एनालाइज इट कि क्वेश्चंस करने वाले थे फिर भी आपसे नहीं हुए, दैट मीन्स यू नीड टू गो बैक टू दोज कॉन्सेप्ट्स। Make your complete chart of mock paper 1, find out all your weak areas, chapter wise find out your weak areas, also strategy wise what are your weak areas, क्या आपने जल्दी में गलत किया क्वेश्चन, क्वेश्चन का सिलेक्शन गलत था या कंसेप्ट में गलती थी, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। पूरा वीक आपको उस पर इंप्रूव करना है और उससे पहले मॉक पेपर 2 पे नहीं जाना है, राइट। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप 50 मॉक पेपर्स हो, आप हर मॉक पेपर का एनालिसिस प्रॉपरली करो, उसके वीक एरियाज, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो और फिर सेकंड मॉक पेपर पे जाओ। एंड आई गेस इस तरह से अगर आप 15 मॉक पेपर्स भी देके जाओगे तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि 50 मॉक पेपर दिया विदाउट एनालिसिस आप 50 मॉक पेपर दे जाओ, इट्स नॉट वर्थ एज 5 मॉक पेपर्स विद दिस स्ट्रेटेजी, राइट। इस स्ट्रेटेजी 5 भी काफी होंगे, बट हमें 15 तो प्रैक्टिस करने ही है एटलीस्ट। वीक 11 गाइस, मॉक 2, सर्कल का ज्योमेट्री का पार्ट आपका रह गया, सर्कल और मेंसुरेशन आपको वीक 11 में कंप्लीट करना है, और प्रॉफिट लॉस और SICA के 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। DILR में आपको 4 सेक्शनल टेस्ट विद 8 सेट्स ईच आपको प्रैक्टिस करना है, और VA के अंदर ये प्रैक्टिस आपका छूटना नहीं चाहिए। सेक्शनल टेस्ट भी देना है, रीडिंग भी प्रॉपर रखना है, और CR RC पैराजंबल्स की रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है, ओके। DILR के आपका सिलेबस ऑलरेडी हमारा 7th-8th वीक में कंप्लीट हो चुका था, और अपना ये प्रैक्टिस उसी तरह से चलता रहेगा। और फाइनली जब वीक 12 आएगा, मॉक 3 एनालिसिस, वीक एरियाज, इंप्रूवमेंट्स एंड अलजेब्रा का रिवीजन करना है, बिकॉज अलजेब्रा को किए अभी हमें 2 वीक हो गए। और सो वीक 12 इज कंप्लीट रिवीजन, अलजेब्रा का कंप्लीट रिवीजन, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क का भी रिवीजन, 10 क्वेश्चंस, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का, राइट। 12th वीक इज फॉर फुल रिवीजन। DILR के सेक्शनल प्रैक्टिस, same with the verbal ability. 13th week, now DILR you can just leave, because now we will be starting with 2 mock papers. So mock paper में आपका verbal ability भी automatically practice हो जाएगा, 2 sectional test हो जाएंगे, और DILR भी practice हो जाएगा, and you will be left with only one single topic, that is one modern math. Modern math को last में इसलिए कर रहे हैं because उसका weightage इतना ज्यादा नहीं है compared to other previous other chapters. So permutation combination से question तो definitely आएगा आपको, but वेटेज में, इन टर्म्स ऑफ वेटेज ऐसा नहीं है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाए या 8 क्वेश्चंस मिल जाए, 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सिमिलरली सेट थ्योरी से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, और एनीवे सेट थ्योरी का पार्ट हम DI के अंदर पहले ही कवर कर चुके हैं। क्वांट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप 13th वीक में जाके कर सकते हो। 13th वीक में आपको PNC और सेट थ्योरी कंप्लीट करना है। इसके बाद भी कुछ और टॉपिक्स हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, यू कैन गो अहेड विद द क्लॉक्स एंड कैलेंडर टॉपिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स,
बट पिछले 8-10 सालों से इस टॉपिक में से क्वेश्चंस नहीं आए, सो आप इस पर रिस्क ले सकते हो, बट फिर भी आप करना चाहो तो 14th वीक में जाके आप उनको कर सकते हो। अदरवाइज 14th, 15th, 16th, 17th वीक में you just need to give 3 mock papers every week. Analysis, improvement, do the analysis of the mock papers, mistakes, find out the mistake, find out the, because जो mistakes आप find out करोगे उसमें आपको chapters मिलेंगे जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये चैप्टर से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो वही चैप्टर पे आपको फिर उस पूरा वीक काम करना है और उसको अच्छे से समझना है, और फिर वो गलती जो आपने मॉक्स 9th में की उसको नोट डाउन करके उसको इम्प्रूव करके 10th में। So guys, 16th, 14th, 15th, 16th and 17th week. In the last 4 weeks, every week, you should be attempting 3 mock papers. और एनालिसिस करने पे जो वीक एरियाज आपको जो वीक एरियाज आप अपने फाइंड आउट कर रहे हो, राइट, जिसमें आपको लग रहा है कि आपका टॉपिक वीक है, वो टॉपिक को रिवाइज करना है, उसको स्ट्रेंथ एरिया में लेके आना है, and you will continue with your analyzing mock papers, finding mistakes and improving it, and then going to the next mock paper. Do not shift from mock paper 15 to 16 or 16 to 17 unless you have worked on all your weak areas that you have found in your previous mock paper. So that's it. 17, I guess 15, 17 mock papers will be more than sufficient, and by the end of the 17th week, this is the number of mock papers you have attempted, and by this you will get to know what are the different areas where you are good at and what are the areas where you are weak at. Accordingly you can form a strategy. You will get to know कि किस एरिया से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अनकंफर्टेबल फील होता है और आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते, तो वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में लीव करने हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हो। एंड फाइनली ऑन डी डे व्हाट यू नीड इज अ कामिंग माइंड, राइट। योर जॉब इज डन इन द स्टिल 17th वीक, राइट। लास्ट डे पे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो व्हाट यू नीड ऑन द डी डे इज अ कॉन्फिडेंट माइंड, राइट। व्हाट यू नीड इज अ confidence in yourself. Just believe in yourself, and a calming mind is all you need on the D-Day to finally crack the paper. Thank you so much for watching this video. Now you can subscribe to the channel where you will be getting the videos, the week wise, right, the schedule that I have given to you. I'll be uploading the videos on all the topics of DI and LR that I have just shown to you in this in all of these slides in the DILR section. In addition to this, I'll be uploading the videos for the exams like NMAT, SNAP, CMAT, and other MBA entrance exam also. Thank you so much, guys.